Let us begin with our revisions. The next poem which I'm doing today is A Thing of Beauty. Now, a very, I can say, typical poem because I have always received the doubts from this particular poem. इस poem से बच्चे सबसे ज्यादा मुझे doubts पूछते हैं. They say they are not able to understand what the poem is all about. तो एक simple language में it is the appreciation of the beauty and people who are courageous, heroic. वो हम वैसे भी करते हैं. Now there is one thing, वो जगह बहुत खूबसूरत है. Kashmir is very beautiful. Now that is a compliment. Whereas when you relate anything, किसी भी नेचर के चीज को अपने साथ आप रिलेट करते हो, then it becomes an appreciation. Like हम लोग कहते हैं अंधेरा, darkness, and normally darkness जो है it's a symbol of our problems, sorrows, दुख, दर्द. तो यहाँ जो पोयम है अब the A Thing of Beauty by John Keats, it's an appreciation of the beauty, the eternal beauty, that is the natural beauty that always inspires us to move ahead. जो हमें हमेशा एक हिंदी में अगर हम कहें तो एक प्रेरणा देता है. दैट लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं. देर आर लॉस, पर्सनल लॉस हमारे होते हैं. देर आर सर्टेन एरियाज जहां हम लोग फेल हो जाते हैं. एंड देन जब हमें ऐसा लगता है तो उस वक्त में व्हेन वी लुक एट द नेचर, दे टेल अस दैट मूव अहेड, आगे बढ़ो, देते रहो. नेचर हमसे लेता नहीं है लेकिन वो हमेशा हमें देता है. छोटा है या बड़ा है, देता है. से द एग्जाम्पल ऑफ एन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल लीजिए. अर्थवॉर्म क्या है? एक कीड़ा. और कीड़ा, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट वी यूज विद अ फ्राउनिंग फेस. लेकिन दैट अर्थवॉर्म इज ऑल्सो समथिंग विच गिव्स फर्टिलिटी टू द, विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल. यानी कि नेचर की हर एक चीज में कुछ खूबी है. देयर इज समथिंग इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर. तो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा, इफ इट इज देयर इन योर माइंड, then this chapter, this poem is very clear to all of you. Don't look into the words what are given. The words are only to enhance your understanding. The poet starts with the phrase that a thing of beauty is joy forever. वो कहता जो खूबसूरत चीजें होती हैं, they provide us eternal peace, eternal inspiration. दे नेवर एंड, मतलब उनमें वो हमेशा देते हैं. दे ऑलवेज गिव अस, दे नेवर एंड, दे आर एंडलेस. एंड देन ही सेज दैट डिस्पाइट, मतलब दे आर, वो ऐसी चीज है जो हमें एक स्वीट स्लीप देते हैं. मीन्स व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटी, they give you sweet sleep. They give you a sleep in which you have good dreams, good health. मतलब हमारी peace, harmony, health, everything is inspired by the nature. Then उसके बाद वो next line में वो कहता है कि despite that, मतलब जो इंसान है, he is surrounded by many disappointments. बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स है. नाउ वी डोंट नो व्हाट आर द डिसअपॉइंटमेंट्स. देयर आर मेनी. द पर्सनल सॉरो, द इनह्यूमन lack of humanity. Inhuman dearth, मतलब dearth means lack of humanity. लोग कहाँ है?
where we can see the people are human. Who are humans? Humans are who are able to understand others. But there is a lack of understanding. कहता है इंसान इतनी सारी चीजों से घिरा हुआ है. He is surrounded by so many problems, disappointments, inhumanity. Yet, something is that which bind us to this earth. कोई एक ऐसी चीज है जो हमें इस धरती से बांधे रखती है. Something is there which inspires us. And that is why, फिर वो आगे कहता है, therefore, that is why we are able to read a flowery band. Now, flowery band means garland, माला. और यहां पर जो है, it is not a flowery band, it is actually just a metaphor, means a hope. हम जो है एक उम्मीद रखते हैं. We never have hopelessness. कुछ भी होगा हम होप रखते हैं. So that is something, कोई चीज ऐसी है जो हमें वो होप देती है. Something is there which gives us that hope inside our heart. और उसके लिए he has taken the examples from the nature. उसने कहा कि नेचर का हर एक चीज, मतलब everything which is present in the nature, which doesn't have a definite shape, that removes that sadness, that shadow. पॉल मतलब शैडो, उस शैडो को, कौन से शैडो को? उस दुख के शैडो को, उस सौरो के शैडो को. दैट रिमूव्स दैट शैडो फ्रॉम आवर सोल. जो हम पर एक बोझ है उसे वो हटा देता है. एंड ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द सन, द मून, द ट्रीज. Now here when he is identifying the trees, he has used the oxymoron old and young. उसने दोनों चीजों को साथ में बोला. Why? पेपर में 2 मार्कर में आया हुआ है. And that is because whether a tree is old or a tree is young, they provide us something. Young है तो flowers, fruits, and old है तो shadow. They are never jobless. वो हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं. The flowers, the daffodils, the green world, the sheep, यानी कि the simplicity of nature, the greenery, the river, the small river. Even when you are passing through a small river, the river may not be a very big, लेकिन अगर आप गर्मी में एक छोटे से रिवर के पास भी जाओगे तो that would give you something cooling effect. What he means to say is, छोटा है या बड़ा है, जानवर हो या फूल हो या पत्ता हो, सब कुछ ना कुछ देते हैं. When you enter the forest, जब आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हो, वहां पर आपको वाइल्ड फ्लावर्स के फ्रेग्रेंस आपको जो है अपनी तरफ खींचते हैं. तो he says everything from the smallest, from the tiniest to the largest, everything provides some inspiration. They go on giving. अगर पेड़ है तो वो हमें जो है फल भी देता है, शैडो भी देता है. रिवर गिव अस वाटर, रिवर गिव्स अस कूलिंग इफेक्ट. तो एवरीथिंग प्रोवाइड्स अस समथिंग, सम इंस्पिरेशन टू मूव अहेड. यहां तक उसने जो नेचर के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं उसको डिस्क्राइब किया है. ही हैज डिस्क्राइब ऑल दोस थिंग्स which are there because John Keats was said to be a nature loving poet. इसके बाद, इस मतलब की एरिया के बाद, ही ऑल्सो फर्दर नेचर के साथ वो लिटरेचर की भी तारीफ करता. ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स द लिटरेचर. नाउ डोंट टेक लिटरेचर एज योर इंग्लिश बुक. लिटरेचर को अपनी इंग्लिश बुक पर समझिए. यहां लिटरेचर मतलब द स्टडी मटीरियल्स, the stories, the tales that you see, that you hear, that you read,
जब आप उनके बारे में पढ़ते हो, जब आप उनके बारे में सुनते हो, कितना अच्छा लगता है। अभी ऑन मतलब मेनी ऑफ द चैनल्स कई बायोपिक आए थे अबाउट दोज पीपल हु हैड लेड देयर लाइफ ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर, ड्यूरिंग द पाकिस्तान वॉर, और हम लोग कितना खुश हुए थे, ओ सैम बहादुर, वाओ। तो जब आपने उनके बारे में देखा तो आपको कैसा लगा? मतलब यू हैड सम इंस्पिरेशन, चाहे वो 1 मिनट के लिए रहा होगा, लेकिन आपको लगा होगा वाओ। तो वो यहां पर तो हम लोग, वो आजकल तो मूवीज आर देयर, बट वहां पर ही इज टेकिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेचर, द लिटरेरी वर्क, when we are reading about some people who have laid their lives mighty dead. यहां पर उसने again he has used the oxymoron mighty dead. Mighty means powerful, dead means powerless. यहां उनका कहने का मतलब है those who are powerful but now they are dead. When we read about them, when we hear about them, they are also endless inspiration. ये ऐसा इंस्पिरेशन है as if you are receiving the blessings from the heaven. That is what he says, that they are मतलब कि pouring unto us from the heavens brink. तो वो जो ये brink बोल रहा है, brink मतलब edge, तो he mean to say it acts like the blessings which God is showering on us. And why the graveyards of the people have been called as magnificent? Because they are heroes. They have laid their life for others. They have sacrificed their lives. So whether it is the nature or the literature, the literary works, when we are going through them, जब हम उनके थ्रू जाते हैं, तो they inspire us. तो यही इस पूरे पोयम का थीम भी है, समरी भी है, एंड मैसेज भी है, टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, एटर्नल ब्यूटी एंड पीपल. द पोयम हैज अ नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, लाइक वी हैव alliteration, मेटाफॉर, इमेजरी, द क्रिएटिव जो क्रिएट किया उसने, एवरी मोरो, एनाफोरा, repetition of the words in the very beginning, assonance, repetition of vowels in a line, oxymoron, young and old, mighty dead. Some teachers also say oxymoron as antithesis because two opposite things have been put together. And the rhyming scheme is A A B B C C. So that is the poem A Thing of Beauty by John Keats. You can see that I have put a question on the screen. Beauty can help us remember that life is worth living. Even when there are sad moments and cruel people around us. Explain in reference to the poem. Now this is a very simple one. अब यहां पर आपको क्या देखना है, मतलब how you will find out कि हमें कौन से वाले पैसेज से इसका आंसर लिखना है. Now the question comes in front of you, right? So look at this word, that is cruel people. Look at the word cruel people. So what is cruel people जो था, where it was used? अगर हम कहें कि cruel people था तो वो कहाँ यूज हुआ था? That was inhuman death. Inhuman death. तो जहां हमारा वो वर्ड इनह्यूमन डेथ यूज हुआ था, यहां का जो आंसर है ये वहां से आएगा. ब्यूटी कैन हेल्प अस रिमेंबर दैट लाइफ. दैट इज व्हाई एवरी मॉरो वी आर मतलब कि इट वी बाइंड आवरसेल्व्स टू द अर्थ डिस्पाइट द डिस्पोंडेंस, इनह्यूमन, लैक ऑफ इनह्यूमन डेथ. वो जो वर्ड आते हैं ना, वो आपका यहां पर है. तो आपको जो स्टार्टिंग वाला है
that you have to describe in this question. तो you have to, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता जो आपको लगता है it's tricky, तो look for the words. Anyway, I'll do that question also with you for a better understanding, but first we would go to the next revision. The second revision which we would be doing today is a roadside stand. Again, I think अगर मैं कहूं कि पांचों पोयम में से मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो थिंग ऑफ ब्यूटी में आती है, फिर रोड साइड स्टैंड में ही आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि आपके माइंड में एक सेटअप है कि वो तो बहुत लंबा पोयम हो, लंबी सी पोयम है। तो द पोयम इज ऑफ कोर्स लॉन्ग, no doubt. But again, the poem is a very simple concept. The contrast between the people who are poor and those who are rich. रॉबर्ट जहां पर जो पोएट था, he actually wanted that the practice of socialism should be there. Means he wanted जो rich and poor के बीच की जो disparity है, the disparity that is there between the rich and poor, that should be removed. और वो कैसे remove होगा? Because when we say the government, so the government cannot alone do everything. And here the poem is written exclusively from the point of view of the person who has put that roadside stand. ये आपके या मेरे हिसाब से नहीं लिखा गया है. It is completely written from that poetic, मतलब उस इंसान के, जिस इंसान ने जो है अपना छोटा सा जो वो उसका नाम क्या स्टैंड है वो बना रखा है. It tells about the city people, those who can support. उसका कहना है कि they can support, but they are pitiless. वो लोग जो है कोई सिंपैथी नहीं दिखाते. And these people जो उम्मीद करते हैं, those who are living in this hope that they would be getting some benefits, they would be getting some help, their hope is in vain. उनकी जो उम्मीद होती है वो बिल्कुल पानी में चली जाती है. The poem starts with a little old house. तो यहां पर जो लिटिल ओल्ड हाउस है, ये जो एक लाइन है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि दैट वाज नॉट अ वेरी रिच एरिया. दैट्स एन ओल्ड हाउस. इट इज वेरी स्मॉल, परहैप्स अ हट, एक छोटा सा कॉटेज, एंड दैट इज नियर द रोड. रोड के एज पर है. तो द फार्मर, द पर्सन हु इज ओनिंग दैट हाउस, ही हैड, आगे उसने जो है at the edge he had converted it into a small shop. आगे उसने एक छोटी सी जो है ठेली सी या फिर you can say just wooden squat लगा रखा है. And what do they sell? They are not selling anything which is very costly. Everything which is available at their end. They are not businessman. मतलब वो दूसरे शहरों से लाकर यहाँ नहीं बेच रहे हैं, जो उनके अपने पास में है. द वाइल्ड बेरीज, द गोल्डन गॉड्स, जो उनके पास है वो उसको, उनके पास जो लकड़ी का जो छोटे छोटे से जो व्हाट यू कॉल एज, जैसे आपके लकड़ी के डब्बे से रखे होते हैं उनमें रखा हुआ. बट जब वहां से, एंड व्हाट दे वांट इज द सिटी पीपल, द पीपल हु मूव ऑन द कार, जो लोग कार से वहां गुजरते हैं, they should stop there and buy some of these products. इनमें से कुछ चीजों को वो खरीद लें जिससे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए. बट जो दैट इज, जो लोग हैं वहां से जो आते हैं, द पॉलिश्ड कार, ट्रांसफर्ड एपिथेट. पॉलिश कार मतलब
the people who are in that car, they are sophisticated and they don't care. They don't care. इनको बुझने से, इनको सड़ने से नहीं बचाते, but they don't care. In fact, ना केयर करने के मतलब ना करे कोई बात नहीं, दे इवन क्रिटिसाइज, वो लोग इनकी जो है बुराई करते हैं. समटाइम्स दे कंप्लेन दैट द लैंडस्केप हैज बीन स्पॉइल्ड. इन्होंने गलत साइन लगा रखे हैं नॉर्थ साउथ करके, एंड दे हैव स्पॉइल्ड द ब्यूटी. यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लास 12 द पोएट इज कमिंग, और पोएट कहता है कि इफ यू डू नॉट वांट टू स्पेंड योर मनी, अगर तुम्हें अपना पैसा नहीं खर्च करना मत करो. क्रॉसली आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस वर्ड इज पुट इन ब्रैकेट क्रॉसली. मतलब क्रॉसली मतलब गुस्से में वो बोलता है नहीं करना ना पैसा मत करो, बट उनके मतलब तुमने ब्यूटी को स्पॉइल कर दिया या ऐसे कंप्लेन्स जो है डोंट डू. ओके, इट इज मतलब कि इट इज ऑफ नो यूज कंप्लेनिंग अबाउट देम. देन इसके नेक्स्ट में वो कहता है कि दे मतलब दे वांट टू शेयर देयर सॉरो विद यू. मतलब दे ट्रस्टिंग सॉरो हियर अगेन इज अ मेटाफॉर एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट. मतलब दे वांट टू शेयर देयर सॉरो विद यू कि जो ये लोग हैं, these rural people far from the city, they have just put these stands so that they are getting some help. But the people who are in authorities, जो लोग authorities में है, government, those who say कि they are the benefactors of such people, ये लोग इनके देखभाल करते हैं, they all party in power, alliteration, party in power मतलब those the government, ruling government, they give a false promise. और आपके पेपर में यहां पर जो चैप्टर सेकेंड था लॉ स्प्रिंग, जिसमें सेम इसी तरीके का है कि promises in their world are bleak. This can be correlated as a question. तो वो कहते हैं ये लोग फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि इनकी लाइफ को बेटर किया जाएगा. दे आर गिवन अश्योरेंस, इनको अश्योरेंस किया जाता है कि इनमें से कुछ लोगों को गवर्नमेंट जो है ऐसी जगहों पर शिफ्ट कर देगी जहां दे आर एबल टू अर्न. इनके लिए दुकान बनाएगी नियर द थिएटर्स, जहां लोग आएंगे, जहां इनसे चीजें खरीदेंगे, इनकी लाइफ जो है दैट वुड इंप्रूव. ऐसे फॉल्स प्रॉमिस करती है. व्हाई? बिकॉज इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द बेनिफिट्स, इनको बेनिफिट देने की जगह वो लोग इनसे काम करवाते हैं. दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर मेड टू वर्क, दे आर गिवन द एश्योरेंस कि एक दिन तुम ऐसे सोओगे, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ स्लीप, और इनकी जो नींद होती है, जो थोड़ी बहुत ये लोग सोते हैं, उसको भी छीन लेते हैं. दे स्नैच दैट स्लीप इवन फ्रॉम देम. दे आर एक्सप्लॉइटेड पिटीलेसली, इनको जो है बुरी तरीके से वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड इसीलिए दे वांट, इनके जो दिमाग है they are calculated to soothe them out of their wits, मतलब इनके ब्रेन को वॉश कर देते हैं. they teach them how to sleep, लेकिन वो खुद सो जाते हैं. these are all false assurances and promises. in the reality nothing is done, they are only exploited. और इसीलिए ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि they don't want to fall into the false promises. वो लोग जो हैं उनके false promises में नहीं आना चाहते हैं. they want कि उनके पास जो छोटी सी दुकान है उसमें से ही लोग कुछ खरीद लें. they don't want any luxurious or lavish life.
उनको कोई लैविश लाइफ की जरूरत नहीं है. दे जस्ट वांट एक्स्ट्रा मनी so that they are able to fulfill their stomach. लेकिन ये जो सिटी पीपल है, जो लोग कार में आते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड देयर पेन. वो कहते हैं कि वो जो मतलब कि जो लोग हैं, जो फार्मर हैं, दे सिट इन द नियर द विंडो, अपने घर के जो खिड़की है वहां बैठे रहते हैं, और हर एक गाड़ी के रुकने पर, एट द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स of each and every vehicle, they have a hope कि शायद ये हमसे कुछ खरीदने आए हैं. they pray, लेकिन उनका जो प्रेयर है, it is waste because the car stop. गाड़ियां रुकती हैं, लेकिन क्यों रुकती है? either they मतलब कि stop to ask the directions, या तो वो डायरेक्शंस के लिए मतलब वहां पे खड़े होंगे, या समटाइम्स दे वुड बी रिवर्सिंग द व्हीकल, और उस वक्त में इवन वहां पे जो रखी घास होती है वो भी खराब हो जाती है. समटाइम्स दे इवन स्पॉइल द ग्रास विच इज केप्ट ओवर देयर, एंड समटाइम्स दे वुड बी आस्किंग फॉर द ग्रेन प्राइस. ऐसे ही ये कितने का है ऐसे पूछ लिया. और अदर टाइम they would be asking for something which is not available there. उन चीजों के बारे में पूछते हैं जैसे गैस अवेलेबल है. अगेन इस जगह पर the poet has put crossly in the bracket. उसने जो है ब्रैकेट में डाला है क्रॉसली. why? because he says अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है तो why do you trouble them, why do you give them false hope? तुम्हें दिखता नहीं है कि वो चीज वहां नहीं है, तो देन व्हाई यू आर आस्किंग? और द पोएम एंड्स विद द व्हाट यू कॉल एज पेसिस्मेटिक नोट. द पोएम एंड्स विद अ पेसिस्मेटिक नोट, मतलब वो एक नेगेटिव नोट में एंड होता है कि ही फील्स कि कुछ ऐसा हो जाए that in one stroke the pain of these people can be removed. He feels कि इनका जो पेन है that is worse than death. इनके कंडीशन से तो डेथ इज बेटर. So in another word, he urges the people, जो लोग काम करते हैं, जो लोग वहां पर जाते हैं, the government, everyone, the readers, everyone, that there should be a harmony. People should understand अगर कुछ है, if they are able to help, they can buy something, they can help them by buying something. They are not begging. वो ना तो beg कर रहे हैं ना चोरी कर रहे हैं. They are only adding to their value, their income. तो अगर हमसे हो सकता है तो हम खरीदें. Government should come and improve their pathetic conditions. The city people should also try to help them out, not by giving them money, but अगर कुछ खरीदा, that would be helpful to them. But instead the city people normally complain about the inartistic way, about ask the things which are not available over there. तो he wants that, मतलब वो यही चाहता. और ये पेपर में एक बार आया था कि what does the poet want the people to do, आया था ही. So that is a roadside stand. In the poem you have a number of poetic devices, like we have alliteration, then metaphor, transferred epithet, polished traffic, oxymoron, the greedy good doers, personification, pathetically pled. Pathetically pled जो है, it is also alliteration, लेकिन the roadside pathetically pled, अब वो तो plead नहीं कर सकता ना. plead means request, वो तो request नहीं कर सकता है. So here the pathetically pled is personification. So that is the poem A Roadside Stand by Robert Frost. With this, two of our poems are
over for revision once again. Two questions are given. The poem throws light on the indifference shown by city dwellers. Means they normally complain. They ask for those things which are not available, or sometimes they unintentionally hurt them. यहां पर वो वाला लिखना है. The poem contrast with the, अभी आप देख लीजिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, false promises made by authority with the worsening condition of poor. Similarly, the chapter Law Spring does reflect the lack of apathy by the authorities. Bring out the similarities. भी आपको मैंने ऊपर बताया था, उसमें भी जो साहिब आलम है या मुकेश है, दोनों क्या है, दे आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स. दो द गवर्नमेंट प्रोमिसेस that they would be giving better conditions for them, yet the curseful practice of child labor continues. जो authorities and they falsely promise they would be building, they would be giving a better life to them, but those promises are bleak. इस वाले पोएम के अंदर भी the authorities say that they would be shifted, इनको शिफ्ट किया जाएगा. They would be given a place near the movie hall where they would be enjoying, but nothing is done. They are in fact exploited. तो वी हैव टू ब्रिंग ऑल दोस, ये जो दो मतलब की कंट्रास्ट है वो हमें यहां पर लेकर आना है. राइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस. I'm also revising the last poem because with this your poetry would be complete. आपका जो poetry section है वो complete हो जाएगा. So I just want to revise the last because that's a अभी ही किया था हमने, and that is Aunt Jennifer's Tigers. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम, जब भी हम पोएम को स्टार्ट करते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द थिंग दैट व्हाट इज द थीम. तो जो हमारा थीम है वो है मेल चॉविनिज्म, मेल डोमिनेशन. मतलब जो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट इन द वर्ल्ड males are given more importance, and sometimes at some places with some women it happens that they undergo domestic violence. Maybe they are not even undergoing a domestic violence, it may be even that they are not able to express themselves freely. उनकी जो फ्रीडम होती है that is curtailed. जो विमेन की फ्रीडम, जो विमेन्स फ्रीडम होता है दैट इज कर्टेल्ड, उनको जो है कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है. तो द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स. द फर्स्ट पैराग्राफ ब्रिंग्स आउट अ कंट्रास्ट. जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो एक कंट्रास्ट है बिटवीन द टाइगर्स एंड द Aunt Jennifer's tigers and her condition. तो पहला पैराग्राफ कहता है कि Aunt Jennifer's tiger जो है they are prancing upon the panel. मतलब वो she is making an embroidery. जो aunt है she is weaving an embroidery. और उस एम्ब्रॉयडरी में जो है she is making the tigers. Why she is making tigers? Because her own character is completely contrast to tigers. She आगे वो कहते हैं कि जो tigers हैं they are fearless.
यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि टाइगर्स जो होते हैं दे आर वाइल्ड, तो देन व्हाई दे आर बीन कॉल्ड एज एलिगेंट, मींस दे आर कॉल्ड एज द किंग ऑफ फॉरेस्ट. दे आर फियरलेस. दे आर द ब्राइट टोपाज denizens of world. मतलब शी हैज कंपेयर्ड देम टू द जेम स्टोन्स. उसने जो है उनको जेम स्टोन से कंपैरिजन किया है. एंड शी सेज दैट दे मूव, मतलब जब वो चलते हैं, दे डू नॉट फियर मेन बीनीथ, मतलब जब वो छलांग लगा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं, जब व्हेन दे ली, जब वो छलांग लगाते हैं, दे आर नॉट फियर. जब जो हंटर्स होते हैं, जब उनको मारने भी जाते हैं तो वो किसी से नहीं डरते हैं. दे फाइट बैक. एक बार क्वेश्चन में आया था ये कि जो मेन है वो किसको बोला गया है. तो हेयर द मेन मे बी द हंटर्स. दे आर, दे डू नॉट फियर देम, उनसे वो नहीं डरते. दे वॉक विथ स्लीक chivalric certainty, मतलब with complete elegance they move on. Then in the second paragraph, the condition of the women has been described. The condition of Aunt Jennifer's has been described. वो कहते हैं Aunt Jennifer is fluttering through her wool. Fluttering means shaking. Her hands are shaking. उसके जो हाथ हैं वो हिल रहे हैं. Finding even the ivory needle to pull. They have become weak, feeble, कमजोर पड़ गए हैं. हल्की सी चीज को भी, आइवरी, यहां पर आइवरी जो मेटाफॉर है वो क्यों यूज किया गया है? बिकॉज आइवरी इज वेरी लाइट, अ फेदर लाइक. मतलब इतनी वीक हो गई है कि वो इतनी छोटी सी चीज भी नहीं उठा पा रही. देन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मतलब नाउ इन द थर्ड लाइन वो कहते हैं कि इट हैज बिकम वीक ड्यू टू द harsh harshness that she has faced in her married life, due to the atrocities she has faced. The massive weight of uncle wedding band has made her hands weak. जो उसने फेस किया है उसकी वजह से वो कमजोर पड़ गई है. मतलब इट इज नॉट ओनली द एज फैक्टर, बट इट इज ऑल्सो द फैक्टर दैट द मैरिज हैज बीन वेरी, उसके लिए जो है इट हैज बीन अ फेल्योर. देन जो थर्ड पैराग्राफ है दैट डिस्क्राइब्स व्हाट विल हैपन इफ द आंट इज डेड. तो शी सेज इवन जो डेथ है दैट कैन नॉट एंड द hardships she has faced. जो इवन डेथ है वो भी उनको सेपरेट नहीं कर सकता है. दैट वुड ऑलवेज बी देयर ऑन हर फिंगर्स. दैट वुड ऑलवेज बी देयर. वो इंप्रेशन हमेशा रहेगा. The poetess says, when Aunt is dead, her terrified hands will be still ringed with the ordeals she had undergone. मतलब ordeals मतलब the hardship that she had faced, that would always be there. That would be visible. That would be visible. यहाँ पर ring is the pun, means that what she has faced as well as the ring that she wore, वो हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा. And the tigers that she made would go on prancing. यानी कि जो डोमिनेशन ऑफ मेल है that would never end.
So this is a poem on Jennifer's Tigers. बेसिकली इसके अंदर आपका जो है मैसिव वेट, द इमेजरी दैट दे हैव, देन शी हैज, मतलब कि aunt Jennifer is fluttering through her wool, finding even the ivory needle hard to pull. The massive weight वाला जो है that has come. The bright topaz metaphor, then pun, that is ring, और ये कई बार क्वेश्चन आता है. So the entire poem revolves around the women who has undergone harsh hardship in her married life, and she is bringing that hardship through her embroidery. She is making something which is completely contrast to her own figures. उसके अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है. Why? Because she wants to have a freedom. She wants to have the freedom. She wants to live a free life, just like the tigers. And there was one question in this particular poem, from this particular poem, that though the, मतलब अगर हम टाइगर को एलिगेंट कहते हैं तो दैट इज राइट, बट ऑन द अदर हैंड टाइगर्स आर ऑल्सो वाइल्ड. बट यहाँ पर द वाइल्डनेस इज नॉट यूज. यहाँ पर टाइगर्स हैव बीन यूज फॉर द डोमिनेशन, फॉर देयर fearless characteristic. So that's a poem on Jennifer's Tigers. With this, the entire poetry section is complete for all of you for the revision. You can see what I have written. Explain in reference to the poem A Thing of Beauty. So I have taken it from there only. Then जो हमारा थीम था कि अप्रिशिएट द नेचर एज अ हीलिंग पावर, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, लाइफ इज वर्थ लिविंग, ये हमें ब्यूटी सिखाता है. इवन व्हेन देयर आर सैड मोमेंट्स, यानी कि इट इज अ हीलिंग पावर. देन इसमें दिया हुआ था कि ह्यूमंस आर सराउंडेड विद सॉरो, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी इन ह्यूमन डर्थ, वो हमने यहाँ यूज किया. डिस्पाइट द डिस्पॉन्डेंट्स, मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स, दे हैव अ बाइंडिंग होप विच कीप्स देम अलाइव. और ये उन्होंने जो है, उसने क्या लिया है, ब्यूटी ऑफ नेचर को लिया है, विच गिव्स अस, विच इंस्पायर अस टू मूव. So this is the way you can write, and you can find the answers from the question itself. There were two questions. The first said that how do the people in the city show their indifference? I have not written it in a very long way. अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, which the same question is in 2 marker, the same is in 5 marker. 2 है तो आपको इतना लिखना बहुत है, but in 5 you can add on. जैसे they complained about the spoiling of the art, nature, landscape. They reversed their vehicle. They destroyed the plow left over there. ये वाली सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो. मतलब if the question is bit longer, you can add on. Otherwise, in a simple way, it is the stark contrast. पहले हमने थीम को लिया, फिर कैसे इंडिफरेंस दिखा रहा है. द रूरल पुअर जो है वो चाहता है कि उनके पास जो चीजें हैं, द स्टफ विच इज अवेलेबल एट द एंड, दे शुड सेल इट आउट. लेकिन जो सिटी पीपल हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड.
तो इनडिफरेंस हो गया. एंड इन फैक्ट कभी कभी दे क्रिटिसाइज और समटाइम्स दे इवन स्टॉप फॉर देयर ओन मोटिव. The second one was to bring the similarity between the two, मतलब कि poem and chapter. तो in the poem, sorry, in the chapter Law Spring, हमारा क्या था कि तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को, या तो देखो उस दिन आपको मैंने बताया था, या तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि इन लॉ स्प्रिंग, या तो फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि उनको फॉल्स प्रोमिसेस दिए जाते हैं, लेकिन उन प्रोमिसेस को दे आर नॉट बॉदर्ड. आप लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते हो, जैसे उसमें लिखा था दे, मतलब कि फिर हमने पहले लिया लॉ स्प्रिंग को, जिसमें साहिब आलम जो है उसके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, और मुकेश काम कर रहा है लेकिन उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं है, बस वो काम कर रहे हैं. दोनों में अथॉरिटीज आर ब्लाइंड आई. इन द सेम मैनर जो हमारा पोयम है, उसमें भी रूरल ड्यूलर्स को प्रॉमिस करते हैं कि उनको अच्छी लाइफ दी जाएगी, बट उल्टा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो ये वाला जो, वो वाला जो पैराग्राफ है जहां पे लिखा है ना कि इट इज शोन इन द मूवी इन मोशन, ये वहां से ये वाला आंसर आया है. अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपके में आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड वेदर द क्वेश्चन इज ऑन द एंटायर थीम और इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन, और वहां से उस आंसर को आपने लिखना है. एंड बिलीव मी, you will always get full marks in that if you are able to identify that. Right? So with this, your entire poetry is now complete.